आई थिंक लाइक यूएस पैसिव फंड मार्केट इंडिया में काफ़ी बढ़ रहा है, ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स का। आप जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, नए निवेशक हैं, वो चाहते हैं कुछ सिंपल प्रोडक्ट मिल जाए। वे आई एम नॉट फोकस्ड ऑन बीटिंग द मार्केट, आई वांट टू मीट द मार्केट। आई थिंक ज़िंदगी में हमेशा इजी आंसर्स नहीं देने चाहिए। एंड मैं जानती हूँ कि जो नए निवेशक हैं उनको लगता है कि ये वॉलेटिलिटी कैसी है, कुछ पोर्टफोलियोज 10% गिरे हैं, 15% गिरे हैं। पहली बार आपने निवेश किया है तो थोड़ी झिझक भी होती है कि क्या हो गया है। 3 कैटेगरीज ऑफ फंड्स हैं जिनको हमें समझना चाहिए। एंड ये क्वेश्चन ईटीएफ का है, लेकिन मैं बाकी 2 से कंपेयर करूंगी। Okay. ईटीएफ है, इंडेक्स फंड है और एक्टिवली मैनेज्ड फंड है। अब ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड को आप एक तरफ रखिए और एक्टिवली मैनेज्ड फंड को एक तरफ रखिए। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स आर दाल चावल इन्वेस्टर्स। आई सेड दिस टाइम एंड अगेन एंड आई विल नॉट चेंज माय स्टैंड बिकॉज़ वी हैव अ फंड लॉन्च। Yeah. You should invest in things which do not make it difficult for you to sleep at night. Yeah. इन्वेस्टमेंट के कारण आपकी रातों की नींद नहीं खराब होनी चाहिए। Yeah. एंड आई ऑलवेज से पहले आप कोर करो, थोड़ा करेक्शन देखो। वो ईटीएफ्स आर टेक्निकली नॉट बिल्ट फॉर एसआईपी। अगर आप एसआईपी निवेशक हैं तो आपको वही चीज इंडेक्स फंड में करनी चाहिए। ईटीएफ में आप हर महीने पैसा डालने में कोई आपको रोकता नहीं है। व्हाट इज एन एसआईपी? इट इज जस्ट कि आपकी इनकम 10,000 है, आप 5,000 हर महीने पैसा डालते हो, वो आप कर सकते हो, बट इट इज नॉट अ टेक्निकल एसआईपी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव अ वेरी वेरी फेमस एंड रेनाउंड पर्सनैलिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो आज हमारे साथ हैं मिस राधिका गुप्ता, who is the MD and CEO of Edelweiss Mutual Fund. Under her stewardship, the company has seen a meteoric rise in assets under management, growing from over 6,500 crores as of 31st March 2017 to more than 1.4 lakh crore rupees by 31st of July 2024. A graduate of the Wharton School at the University of Pennsylvania, Radhika is also a hedge fund manager, entrepreneur, and author. In 2022, she authored Limitless, a groundbreaking guide steering the journey of self-investment towards success. Radhika has been listed by Forbes, Fortune, and Business Today amongst India's most popular women in business and by Economic Times in their list of India's hottest 40 young business leaders. Further solidifying her global reputation in the finance domain, she was recognized as a young global leader in 2022 by the World Economic Forum and received the Distinguished Alumni Award in 2023 from the Jerome Fisher Program in Management and Technology. She was also a judge on Shark Tank India Season 3 and has been named one of GQ India's 35 most influential young Indians, MIYI 2024. Hello everyone, welcome back to Mutual Fund Ki Baat. I'm Namrata Arora and thank you so much for joining us again this week. So on very popular demand, आज हमारे साथ दोबारा है Miss Radhika Gupta. All of us know her. We know she's we love her because of all the wonderful answers that she gives us. Today, our theme is ETF, and just a quick introduction about Radhika. She is the MD and CEO of Edelweiss Mutual Fund. And Radhika, thank you so much for joining us again today. Thank you. Thank you. We love getting you on the show because we love the answers that you give us. So thank you so much for giving us your time. Thank you. I do enjoy interacting with the lovely audience at Grow. So hopefully we'll have some good questions, good answers today. Absolutely. So guys, आज जो हमारा theme है, that's around exchange traded funds, and जो भी हमारे questions होंगे, they are going to be around ETFs. So Radhika, जो हमारा पहला सवाल है आपके लिए, firstly, I would like to know a little bit about what's happening around. हम जानते हैं कि rupee has hit an all-time low against the US dollar, and फिर भी हम देख रहे हैं कि stock market अभी recover हो रहा है. I mean, recent fall के बाद भी अभी हम एक sign देख रहे हैं कि stock market is recovering, and hopefully ये एक extended recovery होने वाला है. तो इस context में आप ये बताइए राधिका कि क्या हम ये recovery जो चल रही है उसको मतलब कंटिन्यू देख सकते हैं? कैन वी सी कि स्टॉक मार्केट विल कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल फॉर सम टाइम? क्योंकि जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको वॉलेटिलिटी से तो डर लगता ही है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो डू यू थिंक एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए हमें है कि अभी स्टॉक मार्केट अच्छी करेगी इन द नियर फ्यूचर? I would love to say yes, Namrata. मुझे हाँ कहना easiest answer है, लेकिन
आई थिंक जिंदगी में हमेशा इजी आंसर्स नहीं देने चाहिए। Yeah. एंड मैं जानती हूँ कि जो नए निवेशक हैं उनको लगता है कि ये वॉलेटिलिटी कैसी है, कुछ पोर्टफोलियोज 10% गिरे हैं, 15% गिरे हैं, पहली बार आपने निवेश किया है तो थोड़ी झिझक भी होती है कि क्या हो गया। Yeah. एंड मैं बार बार ये कहती हूँ, लोग बोर हो जाएंगे सुन के, लेकिन ये जो वॉलेटिलिटी शब्द है, ये मार्केट का उतार चढ़ाव, ये इन्वेस्टिंग की जर्नी में एक बग नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हुआ है, ये एक फीचर है, ये आता रहेगा, ये होता रहेगा। एंड क्वाइट फ्रैंकली मार्केट 30-40% एक साल में बढ़ने के बाद 10% को तो मैं कोई क्रैश भी नहीं मानती। इनफैक्ट समटाइम्स व्हेन आई ट्रैवल, मैं नए निवेशकों को मिलती हूँ एंड दे लाइक, मैडम व्हाट डू वी डू द मार्केट क्रैश? ऐसे नो क्रैश हैज हैपन, आपने कुछ देखा ही नहीं है। नाउ आई थिंक जहां तक हम शॉर्ट टर्म की बात कर, आपने कहा कि मार्केट अच्छा करेगा या नहीं, मुझे लगता है कि अगर किसी का 5 साल का नजरिया है या किसी का 10 साल का नजरिया है, तो अनडाउटेडली इक्विटीज बहुत अच्छे पैसे बना के देखेंगी, क्योंकि ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी डेकेड है। हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन की जरूर होने वाली है, और उसमें कई सारे निवेश के क्षेत्र अच्छा करने वाले हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में market does not move only on this. Market moves on news, market moves on geopolitics, market moves on sentiment। और हमने बहुत अलग जियोपॉलिटिकल माहौल देखा है। हमने हाल ही में यूएस में एक इलेक्शन देखा है, वहाँ के डायनामिक्स भी बदल रहे हैं, और हम आगे जाके भी और सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स देखेंगे। तो आई वुड ओनली रिपीट टू इन्वेस्टर्स कि ये जो क्वेश्चन है अगले 2 महीने में, 3 महीने में क्या होने वाला है, उसका किसी के पास जवाब नहीं है, नहीं तो वो जोशी होता। आप अगले 5 साल की जर्नी पे फोकस करिए। Okay. So which means I completely understand कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देखना चाहिए, there is no denying that, but at least जो जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको लगता है कि मुझे मेरा होराइजन सिर्फ शॉर्ट टर्म ही है, मुझे एक साल के अंदर कुछ तो रिटर्न्स देखने हैं फ्रॉम माय इन्वेस्टमेंट्स, उनके लिए एटलीस्ट क्या हम बोल सकते हैं कि ठीक है, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। सो व्हाट आई कैन से इज कि इंडिया में मार्केट क्यों बढ़ रहा है, पिछले कुछ सालों से क्यों बढ़ रहा है, वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ के कारण बढ़ा है। एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ की स्टोरी मेरे हिसाब से अभी भी रोबस्ट है। अभी Q2 में जो हुआ है, एक करेक्शन हुआ है, क्योंकि एक इलेक्शन का दौर रहा है, जो एक्चुअली नॉट टू मच पॉलिसी मेकिंग हैज हैपेंड। होपफुली फेस्टिव डिमांड अच्छी रही है, Q3 के नंबर्स अच्छे रहेंगे, एंड you will not see a growth slowdown. So as long as हमारी fundamental growth story intact रहेगी, उन इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक दैट इज व्हाट यू शुड टेक हार्ट इन। जो चीज आपको देखनी चाहिए कि इंडियन कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिट ग्रोथ होती रहे। Sure. Okay. All right. So I think now let's jump straight to the theme, which is ETFs. और आज हम पूरा in depth ETFs के बारे में हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि I think ये growing segment है. Of course, when we look at the ETF market across the world, global trend भी ये दिखाते हैं कि ETFs अब करीब $14.4 trillion it holds under AUM globally. So help us understand कि ETFs पहले होता क्या है, right? And how exactly do they work? एक ETF म्यूचुअल फंड में फर्क क्या है? बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ना ETFs और म्यूचुअल फंड्स को जी। इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ETF हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एक अगर मैं एक ETF में इन्वेस्ट कर रही हूँ वर्सेस लेट्स से एन इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ, क्या डिफरेंस होगा? तो आई थिंक 3 कैटेगरीज ऑफ फंड्स हैं जिनको हमें समझना चाहिए, एंड ये क्वेश्चन ईटीएफ का है, लेकिन मैं बाकी दो से कंपेयर करूंगी। ओके। ईटीएफ है, इंडेक्स फंड है, और एक्टिवली मैनेज्ड फंड है। अब ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड को आप एक तरफ रखिए और एक्टिवली मैनेज्ड फंड को एक तरफ रखिए। एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड का पर्पस क्या है कि भाई एक इंडेक्स है, जैसे देख लीजिए निफ्टी है, मुझे ना निफ्टी के 50 स्टॉक्स नहीं चुनने, क्योंकि मुझे निफ्टी से बेटर रिटर्न देना है, तो मुझे उन 50 में से 30 या 40 लेने हैं, बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज निफ्टी को बीट करने का है। ये एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड का ऑब्जेक्टिव होता है। अब इंडेक्स फंड और ईटीएफ एक्टिवली मैनेज नहीं होते, वो पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे बस आपको निफ्टी का रिटर्न देना है या जिस भी इंडेक्स का रिटर्न देना है। तो एक्टिव फंड का ऑब्जेक्टिव होता है बीट द मार्केट, पैसिव फंड का ऑब्जेक्टिव होता है मीट द मार्केट। ये बहुत साधारण चीज है। तो जब आप किसी पैसिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको सिर्फ मार्केट रिटर्न माइनस एक्सपेंसेस मिलेगा। ओके ना, उसमें भी दो तरह की चीजें होती हैं, एक इंडेक्स फंड होता है, एक ईटीएफ होता है।
इंडेक्स फंड बिल्कुल एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, उसमें आप एसआईपी कर सकते हैं, उसका एनएवी दिन में एक बार आता है, जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड जिससे हम वाकिफ हैं। ईटीएफ इज एन इंडेक्स फंड जो एक शेयर की तरह बिहेव करता है, वेरी सिंपल। ईटीएफ इज एन इंडेक्स फंड दैट बिहेव्स लाइक अ स्टॉक, विच मीन्स वो एक्सचेंज पे ट्रेड करता है। ईटीएफ को यूज करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत है, जैसे कि आपको एक स्टॉक में। ईटीएफ आप अपने ब्रोकर के थ्रू लेते हैं, जैसे आप कोई भी शेयर अपने ब्रोकर के थ्रू लेते हैं। और ईटीएफ की खास ये बात है, ईटीएफ का हर वक्त प्राइस आता है। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आपको एक थीम है, उसमें 10% ईटीएफ सुबह गिरा है, तो आप उसे 10 बजे ले सकते हैं और 2 बजे बेच सकते हैं। तो ट्रेडर के लिए फॉर इंस्टेंस ईटीएफ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि उसका प्राइस हर मिनट आता है, इंडेक्स फंड का वंस अ डे आता है। तो ईटीएफ इज ए म्यूचुअल फंड दैट बिहेव्स लाइक अ स्टॉक। उसका ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी इंडेक्स को मीट करना, एंड यू कैन बाय एंड सेल इट एट एनी टाइम यूजिंग योर डीमैट अकाउंट जस्ट लाइक अ स्टॉक। ओके, सो बेसिकली एक इंडेक्स फंड में जो है आपको एनएवी दिन में एक बार आएगी, जी, वी गेट। तो जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं दिन में 3 बजे से पहले, हमें उसका एनएवी नहीं पता होगा, बिकॉज एनएवी विल बी डिक्लेयर्ड एट ईटीएफ आप देख के करते हैं लाइक अ स्टॉक। लाइक, एंड इसमें आपको रियल टाइम में पता चल जाएगा कि आप किस एनएवी पे खरीद रहे हैं, किस एनएवी पे बेच रहे हैं, बिकॉज इट्स यू आर बाइंग इन रियल टाइम। दैट्स द यस। डिफरेंस बिटवीन द टू. In terms of returns, do you think there would be a difference then, because you're buying and selling at in real time versus an index fund? So do you think, मान लीजिए एक निफ्टी ETF है versus a निफ्टी index fund है, how would you say कि इसमें difference होगा in terms of returns for the investor? See, the return should not be very different. I'll tell you कहाँ छोटा सा डिफरेंस आता है। अगर आप एक बैंक निफ्टी, जैसे we have a बैंक निफ्टी ETF, you could have a बैंक निफ्टी इंडेक्स फंड, दोनों ले रहे हैं, तो आपका रिटर्न तो बैंक निफ्टी के हिसाब से होगा। जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी, तो बैंक्स अच्छा करेंगे, तो आपका ईटीएफ इंडेक्स फंड दोनों बहुत अच्छा करेंगे। Correct. अभी इंडेक्स फंड में क्या कॉस्ट होती है? मैनेजमेंट फी होती है। ईटीएफ में मैनेजमेंट फी होती है, आपका ब्रोकरेज कॉस्ट होता है, एंड खरीदने बेचने का कुछ डिफरेंस, प्राइस डिफरेंस होता है, तो वो होता है। Okay. मोटा मोटा द रिटर्न शुड बी वेरी सिमिलर। Okay. But it's just that just in case आपने जो है बहुत मार्केट लो पे खरीद लिया ETF जी, versus, you know, जैसे I would say 4th of June is a classic आई वुड example. से The 4th ऑफ election, जून इज अ ग्रेट एग्जांपल। जैसे आई थिंक अगर आप 4th ऑफ जून को देखें, तो 10-11 बजे के अराउंड मार्केट काफी गिरा था। 6,000 पॉइंट के करीब नीचे था. Yeah, हाँ, इनफैक्ट आई रिमेम्बर एट सम पॉइंट मिड कैप्स 8-10% गिरे थे, exactly. और बाय द एंड ऑफ द डे शायद 3-4% गिरे थे। उसमें Exactly. इंडेक्स फंड आपको बहुत हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आपको वो 3-4% वाली एनएवी मिलेगी। लेकिन Yeah. अगर आपने 10% नीचे खरीदा होता और ETF. जब एंड ऑफ डे में बेचा होता, तो आपका स्ट्रेट 5% का फायदा होता, विच Yes. इज टू ट्रेड इट्स एन ब्रिलियंट प्रोडक्ट। Okay. Wonderful. So yeah, I mean, I brought out 4th of June just to bring out an example कि कैसे आप एक दिन में वो difference पता कर सकते और हैं. खासकर जो ज्यादा वॉलेटाइल ईटीएफ्स होते हैं, जैसे एक किसी थीमेटिक कैटेगरी में Yeah. ईटीएफ होता है, आप ब्रॉड मार्केट में देखते हैं इतना वॉलेटिलिटी दिन में नहीं होता। Yeah. लेकिन कुछ थीम्स में कुछ सेक्टर सुबह बहुत खराब खुलते हैं, फिर ऊपर हो जाते हैं, या ऑपोजिट हो जाता है, फिर ये बहुत काम की चीज है। Wonderful. Okay. So Radhika, help us understand कि हमने ये तो समझ लिया कि ETFs क्या होते हैं, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, एंड आई थिंक we've learned it in a very beautiful way. Now help us understand कि स्कोप क्या है ETFs का इंडिया में. Do you think ग्लोबली तो हम देख रहे हैं कि ट्रेंड वाइज इट्स डूइंग ग्रेट, एंड AUM बढ़ी रहा है ETFs का, लेकिन अगर हम इंडिया में देखें, डू यू थिंक इसका स्कोप है? डू यू थिंक कि इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ETF एज अ कैटेगरी में? एंड आगे जाके आपको क्या लग रहा है ETFs का ट्रेंड क्या होने वाला है? तो आई थिंक लाइक यूएस, पैसिव फंड मार्केट इंडिया में काफी बढ़ रहा है, ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स का। आप जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, नए निवेशक हैं, वो चाहते हैं कुछ सिंपल प्रोडक्ट मिल जाए, वे आई एम नॉट फोकस्ड ऑन बीटिंग द मार्केट, आई वांट टू मीट द मार्केट। Yeah. एक तो इसके कारण ये डिमांड आ रही है। द नंबर ऑफ पीपल ओपनिंग डीमैट अकाउंट्स, इन्वेस्टिंग, डूइंग इन्वेस्टिंग, वो ही बढ़ता जा रहा है, फाइनेंशियलाइजेशन हो रही है। दूसरा, ईटीएफ और इंडेक्स फंड यूनिवर्स में कुछ बहुत अलग और इंटरेस्टिंग ऑफरिंग्स अब आने लगी है, दैट आर गिविंग इन्वेस्टर्स ऑप्शन बियॉन्ड द वेरी वनीला थिंग्स। तो इन कारण मुझे लगता है ईटीएफ का मार्केट बढ़ ही रहा है। Okay, okay, okay.
So, you know, Radhika, this is one very fundamental question. It could sound silly, but देखिए अभी ना जैसे equities के बारे में बहुत सारी awareness बढ़ रही है, जी तो लोगों ने जिनको थोड़ा कम रिस्क लेना था म्यूचुअल फंड से शुरू किया, जो लोग थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, उनके डीमैट अकाउंट्स हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे निवेशक हैं जिनके शायद डीमैट अकाउंट्स नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के लिए डीमैट की जरूरत नहीं होती है, हाँ। राइट? सो देन डू यू थिंक दैट कुड हैम्पर ETF एज अ कैटेगरी? क्योंकि उसके लिए अगर मान लीजिए मुझे स्टॉक्स नहीं खरीदने, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, सिर्फ ETF के लिए फिर मुझे डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डू यू थिंक दैट कुड हैम्पर द ग्रोथ ऑफ दिस कैटेगरी? I don't think so. Actually, India has a larger number of people जिनके पास डीमैट अकाउंट्स हैं versus mutual fund folio. So ओके, already by the way, race में if you see डीमैट accounts are ahead. Now अगर आपको डीमैट अकाउंट नहीं खोलना है तो बहरहाल इंडेक्स फंड की चॉइस है आपके पास. या बट आई रियली बिलीव कि इंडिया में इतने इन्वेस्टर्स हैं, 5 करोड़ तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, 10 करोड़ से ज्यादा डीमैट इन्वेस्टर्स हैं, बहुत लोग आने वाले हैं. अलग अलग इन्वेस्टर्स के अलग अलग बर्ताव होते हैं, अलग 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 जरूरत होती हैं. तो जिसकी इंट्राडे की जरूरत है, जिसको रियल टाइम एनएवी की जरूरत है, वो ईटीएफ करेगा और बेशक उसके लिए डीमैट अकाउंट खोलेगा. ओके, ओके. सो यू नो, एज एन इन्वेस्टर मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में इनकॉर्पोरेट कैसे करूं? यू नो, हाँ. वी हैड इनफ कॉन्वर्सेशंस अराउंड पैसिव फंड्स, राइट? सो या. वी स्पोकन कि आप एक पैसिव फंड और एक्टिवली मैनेज फंड को, यू कैन हैव बोथ ऑफ देम इन योर मिक्स. पोर्टफोलियो. या. Yeah, you could have a mix and match. I think last episode में भी हमने डिस्कस किया था, and you said कि it's not this or this is this and this, right? You can have both. लेकिन अब विद इन पैसिव फंड्स भी अगर हम इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स के बारे में बात करें, डू यू थिंक एक ईटीएफ को, आई मीन एक इंडेक्स फंड को ईटीएफ रिप्लेस कर सकता है? और हाउ डू आई मेक इट एज अ पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो, कि मेरे पोर्टफोलियो का क्या परसेंटेज, कैसे मैं उसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकती हूँ? सो आई थिंक ईटीएफ की दो पोटेंशियल रोल्स हो सकती हैं एक पोर्टफोलियो में. एक तो लाइक आई ऑलवेज से देयर इज अ कोर पोर्टफोलियो, राइट? सो अ broad based ETF for instance like a nifty ETF is a very nice part, or a gold ETF आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है. There are some very good thematic ETFs, for instance a quality ETF, or like you know, say a broad base like a nifty 500 quality ETF type thing. ये बहुत broad core allocation हो सकता है. दूसरा, हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में एक सैटेलाइट एलोकेशन होता है where you have thematic ideas etc etc. There I think ETF is a beautiful play, क्योंकि थीम्स जब आप करते हैं तो एंट्री एंड एग्जिट इज वेरी वेरी यूजफुल, एंड दे आर टैक्टिकल इन नेचर क्योंकि थीमेटिक. तो उसमें बहुत सारे आप इंटरेस्टिंग थीमेटिक ईटीएफ्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड व्हेन यू गेट देम एट गुड प्राइसिंग इन द मार्केट यू कैन बाय देम एंड प्ले द थीम. ओके, सो यू थिंक कि अगर मैं एक ईटीएफ को अपने पोर्टफोलियो में इनकॉर्पोरेट करना चाहती हूँ, तो एक थीमेटिक फंड को मैं थीमेटिक ईटीएफ से रिप्लेस कर सकती हूँ, राइट? यस, एंड यू कैन प्ले दैट वेरी टैक्टिकली बिकॉज Tactically, yeah. वॉलेटिलिटी आपके लिए हेल्प करेगी. Yeah. Because logically एक जो हमारा सैटेलाइट पोर्टफोलियो होता है, दैट इज माय टैक्टिकल एलोकेशन, It is दैट इज समथिंग विच इज समथिंग मैं रियल टाइम में प्ले कर सकती हूँ टू यू नो बेटर माय रिटर्न्स. तो आप बोल रहे हैं कि आप थीमेटिक को जो है, फंड्स को, एक्टिवली फंड्स को हम ईटीएफ से रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, नाउ यू ऑल्सो स्पोक अबाउट से गोल्ड एंड सिल्वर. तो अब देखिए, गोल्ड और सिल्वर में इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होता है, हाँ. डे टू डे बेसिस उतना वॉलेटिलिटी नहीं होता है. सो अगर मैं गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, इंटरनेशनल ईटीएफ को देखूं वर्सेस से अ गोल्ड फंड, सिल्वर फंड या इंटरनेशनल फंड, हाउ डू आई मैनेज द टू? डू यू थिंक मुझे ईटीएफ लेना चाहिए गोल्ड सिल्वर या whatever, और डू यू थिंक आई शुड जस्ट इन्वेस्ट इन अ फंड? सो एक्चुअली इन गोल्ड सिल्वर जो मैंने एक्टिव पैसिव समझाया, गोल्ड एंड सिल्वर फंडामेंटली उसमें पैसिव ही होता है, कोई एक्टिवली मैनेज प्रोडक्ट ही नहीं है. इनफैक्ट अगर आप गोल्ड फंड भी देखें जो इंडस्ट्री ऑफर करती है, वो अंडरलाइंग ईटीएफ में ही निवेश करते हैं. करेक्ट. तो अगर आपको गोल्ड का एक्सपोजर चाहिए, फाइनेंशियल गोल्ड का, फिजिकल गोल्ड का नहीं, एंड मुझे लगता है फाइनेंशियल गोल्ड ही करना चाहिए, तो आपको ईटीएफ के जरिए ही करना चाहिए. अब वेदर यू आप ईटीएफ खरीदे या आप एक फंड खरीदे जो ईटीएफ खरीदता है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन वो आपको पैसिवली ही करना पड़ेगा. ओके, और मेरा मानना है एसेट एलोकेशन के हिसाब से किसी भी पोर्टफोलियो में 5-10-15% गोल्ड और सिल्वर का ब्लेंड हो सकता है. लाइक फॉर इंस्टेंस वी हैव समथिंग व्हिच इज अ फंड बट इट इन्वेस्ट इन 50% गोल्ड एंड 50% सिल्वर ईटीएफ कंबाइंड प्रोडक्ट, बट फाइनली आप निवेश तो एक ईटीएफ में ही करना है. इंटरनेशनल में थोड़ी अलग बात है, बिकॉज इंटरनेशनल में आपके पास काफी ऑप्शंस हैं. आपके पास
एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं, विच कुड बी मैनेज्ड विद अ पार्टनर एएमसी और समथिंग लाइक दैट. आपके पास इंडेक्स फंड्स हैं, आपके पास ईटीएफ्स है. उस कैटेगरी में मैं कहूंगी कि आपको, बिकॉज इंटरनेशनल कैटेगरी में प्रोडक्ट्स में बहुत फर्क है, एक्चुअली कॉमनैलिटी बहुत कम है, आपको हर प्रोडक्ट को इंडिविजुअली एवेल्युएट करना चाहिए. ये मेरा सजेशन है. Okay. Okay. Now, since we are talking about this category, let me just ask you कि अगर हम cost implication और tax implication की बात करें, right? Okay, so let's just take gold and silver ETF versus a fund. What do you think कि cost wise क्या मुझे एक ETF सस्ता पड़ेगा versus investing in a fund, because वो fund eventually ETF में invest कर रहा है. या सो देयर विल बी एन एक्सपेंस रेशियो व्हेन यू इन्वेस्ट इन द फंड. आमतौर से वो बहुत कम होता है, बट ईटीएफ में आपकी थोड़ी सी ब्रोकरेज कॉस्ट लगेगी. मुझे लगता है आप इंडिविजुअल कंपेरेबल मैथ करिए, इट विल बी सिंपलर. Tax is similar between gold ETF and gold fund. Only difference is ETF gold में listed security माना जाता है, तो Okay. एक्चुअली आपका 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो जाता है, फंड में 2 साल के बाद होता है इन द केस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. Okay. तो Okay. थोड़ा सा एडवांटेज है ईटीएफ का. Okay. All right. So, since we're talking about different categories, let's talk about thematic ETFs. Because I do believe कि it's a wonderful way of replacing thematic funds in your portfolio, क्योंकि आप real time play कर सकते हैं. I think अगर एक satellite portfolio में मैं real time manage कर सकते हैं अपने portfolio को, that is much better than managing it through a proper mutual fund. So help us understand कि पहले आप बताइए कि अगर हम सिर्फ थीम की बात करें, आपको क्या लगता है कौन सी थीम आज के टाइम में इंटरेस्टिंग होगी जो हम लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर सकते हैं. एंड जब हम थीमेटिक ईटीएफ्स की बात करते हैं, इलैबोरेट अ लिटिल बिट मोर ऑन थीमेटिक ईटीएफ्स. आपने थोड़ा बेसिक टचअप किया है, बट इलैबोरेट अ लिटिल बिट मोर ऑन थीमेटिक ईटीएफ्स. So I will answer this in reverse way. Thematic ETFs basically look at either a particular sector or a particular theme. So, Okay. for instance, like a bank Nifty ETF is a sectoral ETF. Banking एक sector है, वो सिर्फ banking stocks में invest करेगा. And there will be an index called Bank Nifty जिसमें public sector banks, private sector banks उनकी weights होंगी. ऐसा होगा. A consumption ETF will invest in consumption sector. Theme I think is thoda sa broader than sector. So theme is almost like we say that themes are trying to catch a bigger trend in India. For instance, internet economy is a theme. It is not a sector कि एक ही sector में. और digital India एक सेक्टर नहीं है, बिकॉज डिजिटली फोकस्ड कंपनीज तो आपको ईवी वाली कंपनी में मिलेगी और आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो दे स्पैन मल्टीपल सेक्टर. सो दिस इज द डिफरेंस आई थिंक बिटवीन सेक्टोरल एंड थीमेटिक. एंड I'll answer the last question, but I just want to give you one piece of advice on how to choose thematic ETFs. Okay, a little more unbiased piece of advice. Choose a sector that is very, a theme that is not very narrow. अगर उस ETF की इंडेक्स में 4 स्टॉक हैं, 5 स्टॉक हैं, या 3 स्टॉक 70% उस पोर्टफोलियो का है, तो मुझे आमतौर से डर लगता है, बिकॉज आप सिर्फ 3 स्टॉक में निवेश कर रहे हो. चूज समथिंग दैट इज नॉट टॉप ऑफ द साइकिल, क्योंकि उस थीम का अगर पी 100 है तो थोड़ा प्रॉब्लम है. सो दीज आर द 2-3 थिंग्स आई वुड कीप इन माइंड. I think India will have, we believe at Edelweiss MF, India will have many mega trends. In fact, we are going to be launching series of these mega trend ETFs जो इंडिया के बड़े बड़े सेक्टर्स और थीम्स हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं. वन इंटरेस्टिंग वन वी आर डूइंग नाउ इज, एंड हमने इंडियन इकोनॉमी की बात की, दैट इंडिया हैज अ यंग पॉपुलेशन. Yeah. Consumers, people want to save, they want to invest, platforms like yours are growing, per capita income बढ़ रही है, digital access बढ़ रहा है. So this whole theme of capital markets and insurance, and अगर आप हम हमारी penetration देखो, we hardly have people who have mutual fund folios, we hardly have people who have demat accounts, we hardly have people who are adequately insured, but all of these themes are growing. So we are launching a capital markets and insurance ETF, और हमें लगता है कि सेक्टर अभी बहुत महंगा भी नहीं हुआ हुआ. सो सम ऑफ द थिंग्स आई सेड ना कि थीम ब्रॉड बेस्ड होनी चाहिए और बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए. So you do believe कि ये थीम ब्रॉड बेस्ड है? I mean, जब हम कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस सेक्टर की बात बिकॉज करते इसमें बहुत सारी कंपनीज आएंगी, इसमें एक्सचेंजेस आएंगे, डिपॉजिटरीज आएंगे, वेंडर्स आएंगे, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आएंगी, लाइफ इंश्योरेंस आएगा, जनरल इंश्योरेंस आएगा. तो इट इज नॉट कि 3 स्टॉक्स डोमिनेट द होल इंडेक्स, बहुत वाइड है. और Okay. sometimes when these themes haven't done well in the past, they have more opportunity to do well in the future. Wow, okay.
एंड यू आर सेइंग कि ये अभी अंडरवैल्यूड भी है जी. एज अ So that is what I would look for when you're doing tactical investing. You want to look for something that's थोड़ा सा cheap. ओके ओके बट हेल्प अस अंडरस्टैंड कि इसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों क्या होगा मतलब ऑफ कोर्स आपने अच्छी बात तो बता दी, आई थिंक हमारे व्यूअर्स को पता चलना चाहिए कि इसमें देयर कुड बी नेगेटिव साइड एज वेल, सो एनी So I नेगेटिव। think any kind of thematic investing volatile आता है. ये रियलिटी है और ये आपको तो अगर एंड इट इज सिक्लिकल टू द इकोनॉमी. अब इकोनॉमी में कुछ ऐसा हुआ फॉर इंस्टेंस इन दिस थीम ओनली, अपना ही पकड़ लेते हैं और किसी का क्यों, कुछ ऐसा हुआ जो इंश्योरेंस के अगेंस्ट एडवर्स रेगुलेशन आ गई, इसमें इम्पैक्ट होगा. निफ्टी में कम इम्पैक्ट होगा बिकॉज निफ्टी हैज लेस कंपोनेंट ऑफ इंश्योरेंस. अगर कैपिटल मार्केट्स में या फॉर इंस्टेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स दोबारा डबल कर दिया गया ओवरनाइट, of course इस थीम में ज्यादा इम्पैक्ट होगा. So these things are more sensitive because they are thematic in nature, they are more volatile. ओके ओके सो देन अगर मुझे इन्वेस्ट करना है लाइक यू नो पर्सनली स्पीकिंग फॉर एग्जांपल मैं पिछले 20 साल से इन्वेस्ट कर रही हूँ हाँ. इन म्यूचुअल फंड्स एंड इन इक्विटीज इन जनरल, सो आई थिंक आई कैन से कि चलो आई थिंक आई वुड लाइक टू टेक अ रिस्क इन अ थीमेटिक जी. ईटीएफ. बट अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर 2021 या 2020 में उसने इन्वेस्ट करना शुरू किया, डू यू थिंक उसके सैटेलाइट पोर्टफोलियो में भी हो सकता है? क्योंकि ऐसे इन्वेस्टर ने ना डाउन साइड देखी नहीं है. हमने 2008 देखा है, बहुत कुछ देख लिया है पिछले 20 सालों में. बट फॉर एन इन्वेस्टर जिसने 2020 या सिर्फ पिछले 4-5 साल में इन्वेस्ट करना शुरू किया, डू यू थिंक इट्स अ राइट फंड फॉर दिस इन्वेस्टर? First time investors are dal chawal investors. I've said this time and again and I will not change my stance because we have a fund launch. Yeah. You should invest in things which do not make it difficult for you to sleep at night. इन्वेस्टमेंट के कारण आपकी रातों की नींद नहीं खराब होनी चाहिए. Yeah. एंड आई ऑलवेज से पहले आप कोर करो, थोड़ा करेक्शन देखो, थोड़ा वो करो. या अगर आपको इतना एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे सुन के, आप छोटा अमाउंट करो. Sure. But core of your portfolio, I always say 80% must be dal chawal. For a first time investor, 90% should be dal chawal. Okay, okay. So that means एक evolved investor इसमें maybe 10% allocation देख सकता है. And this is true for many, many thematic funds. And you know, when you make the allocation, if your expectation is कि ये volatile होगा, you'll be okay. Okay. So even as an evolved investor, Radhika, can I say कि मुझे इसमें कम से कम 4-5 साल तक इन्वेस्ट करना चाहिए and थोड़ा Ideally, in real time? ideally, yes, but you know, themes and thematic investing is little different. It's a little tactical in nature. So, and ETF business is also little tactical in nature. So, when you're doing dal chawal investing, 80% of it, it is of course long term. When you're doing things like this, if you get a great entry price and you get a great exit, you can be little more tactical. That is why it is satellite. सो ये ओके पर्सनली स्पीकिंग जैसे अगर मैं अपना पोर्टफोलियो देखूं तो मेरा आई थिंक बहुत ज़्यादा कोर पोर्टफोलियो ही है. मैं बहुत कम सेक्टर या फिर स्मॉल कैप्स में है, बट आई फॉर मी आई डोंट थिंक स्मॉल कैप इज अ सैटेलाइट. That is for me core, yeah. या फॉर मी दैट्स कोर बिकॉज मैंने उसको 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया. दैट्स लाइक माई रिटायरमेंट कॉर्पस वाला फंड. तो इसलिए वो तो मुझे पता है कि मैं कोर पोर्टफोलियो कैसे है. मेरा बहुत छोटा एलोकेशन सेक्टरल फंड में इन अ वेरी ब्रॉड सेक्टर. नाउ हेल्प मी अंडरस्टैंड कि अगर मैं एक थीमेटिक ईटीएफ में डालती हूँ, हाउ वुड आई नो कि कब यू नो सही टाइम होगा एग्जिट करने का? बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द मार्केट, राइट? सो मुझे क्या पता कि हाई कब है? So I'll tell you two things. At least हमारा approach ये रहा है. One, even though I've said you should exit, if you are an evolved investor, you'll know इस सेक्टर की मल्टीपल अभी सस्ती है, इस सेक्टर की मल्टीपल थोड़ी महंगी है. That's a very good sense of when to do. At least we always think जब मैं इसकी बात नहीं करती, कोई भी फंड लॉन्च करते हैं, थीम ब्रॉड बेस्ड क्यों होना चाहिए? अगर आप ना एग्जिट करें 4-5 साल में, ये थीम पैसे बनाए. इतना नैरो नहीं होना चाहिए. इतना नैरो यू हैव टू बिलीव कि इंडिया में अगर आप 10-20 साल काम करोगे तो स्टॉक ब्रोकर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इनका बिजनेस अच्छा ही करेगा. अब अगर आपकी टाइमिंग अच्छी हो गई एंट्री एग्जिट की, तो वो और अच्छा करेगा. लेकिन कुछ नहीं करोगे फिर भी ठीक ही करेगा. दैट्स व्हाई आई कॉल इट अ मेगा ट्रेंड. ये ट्रेंड तो है. I mean, that's why, like, I truly call myself a very dal chawal investor because I have all dal chawal funds. And इस शॉर्ट टर्म के लिए तो एक साल के लिए तो मैं तो एक शॉर्ट टर्म डेट फंड या ऐसे किसी डेट फंड में ही डाल देती हूँ because I'm like, you know, why take risk with equities in the very short term? But I think it's a good strategy for people who are looking at slightly, you know, higher risk in terms of managing their portfolio. Okay.
Wonderful. A lot Okay, of so people, by the way, want to do direct stocks, right? yeah, And for those who are looking to do direct stocks, they are betting on this theme. This is a very good bundled way of solving that problem. wonderful. आप डायरेक्ट स्टॉक्स भी तो करते हैं. Correct. तो Correct. यहाँ एक एएमसी आपको बास्केट बना के दे रहा है. Hmm. Okay. All right. Okay. So, हमने बात करी कि there are ETFs which track Nifty Next 50 index, right? या Mid cap fund, small cap indices. या ऐसे बहुत सारे अलग-अलग ETFs होते हैं. So, help us understand कि how do these ETFs work? So these are very simple. These are your classic दाल चावल broad based ETFs. इनका कोई broad market cap index होता है, जैसे सेंसेक्स के ETFs होते हैं, निफ्टी के होते हैं. सेंसेक्स इज टॉप 30, Correct. निफ्टी इज टॉप 50, मिड कैप इज टॉप 150, नेक्स्ट Yeah. 150. So they are very good dal chawal core portfolio allocations to get simple exposure. They also can be used to trade for people who want to use ETFs to trade. Sure. So can I say कि मैं अपने पोर्टफोलियो में एक मिड कैप फंड को एक मिड कैप ETF से रिप्लेस कर दूं? Yes, you can. You Okay. can. You can look at that. And that will become my core Or you portfolio. can do half actively managed mid cap fund, half ETF. Okay. Okay. कि आप थोड़ा रियल टाइम में भी ट्रेड कर पाओ हाँ. एंड बाकी इज एनीवेज And Baki is. Or if you have 10% allocation to mid cap fund and June 4th aa gaya and you can't buy units of the fund, you add 5% more in ETF. वंडरफुल या दैट्स समथिंग दैट कैन बी ओके. अगर हम SIPs की बात करें ETFs, राधिका, SIP इन जनरल आई थिंक हम कितना भी बात करें कम है या बहुत बात कर चुके हैं SIPs के बारे में. SIPs inflows have been remarkable, almost Yes. 25,000 crores, second straight month in November. तो क्या हम ETFs में SIP कर सकते हैं? आपने बोला कि ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, could be a short term strategy, बट इसमें लमसम करना चाहिए या SIP भी कर सकते हैं? Well, ETFs are technically not built for SIP. अगर आप SIP निवेशक हैं तो आपको वही चीज इंडेक्स फंड में करनी चाहिए. ETF में आप हर महीने पैसा डालने में कोई आपको रोकता नहीं है. व्हाट इज एन SIP? इट इज जस्ट कि आपकी इनकम 10,000 है, आप 5,000 हर महीने पैसा डालते हो, वो आप कर सकते हो, बट इट इज नॉट अ टेक्निकल SIP. Okay. So it just, I mean, because आप एक real time opportunity को use कर रहे हैं through an ETF, तो फिर why SIP, right? Why SIP. SIP? I mean, Exactly. SIP इंडेक्स फंड इज मेंट फॉर दैट इन्वेस्टर जो पैसिव करना चाहता है लेकिन म्यूचुअल फंड के सारे फीचर्स ढूंढता है. right. Okay. Yeah. I think it makes sense because I might as well do a lump sum. तो so can I say कि मैं थोड़ा पैसा जो है एक liquid fund में रख सकती हूँ? और फिर मैं उसको यूज कर सकती हूँ थोड़ा बहुत ETF करने के लिए. हाँ, तो जैसे ही मुझे लगे मार्केट थोड़ा डिप हुआ, I'll मैं वो ले लेती हूँ. put that in a ETF kind of Yeah. thing. And as I said, it works beautifully with sectors क्योंकि वो बहुत volatile होते हैं. Exactly, yeah. I mean, volatility इतनी कि शायद एक दिन में हम बहुत volatility देख हाँ, तो वो सकते हैं. सेक्टर 10% एक दिन में गिर जाए, then you can pick up something. Wow, okay, okay. So I think that clarifies our doubt कि SIPs शायद ETF में थोड़ा, it may not make It's not sense. built for SIP. It's not built for SIPs. Okay. Now we were talking about the returns and आप बोल रहे थे कि जो अगर एक इंडेक्स ETF हुआ या इंडेक्स फंड हुआ, that is market minus the expenses. But how about the tracking error? So, Can you help us understand कि ETF में tracking error का क्या impact होगा? so tracking error exists in index fund and ETF both. What Yeah. is tracking error? I'll give you a खाने का analogy. एक मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइज किसी ने लिया और मैकडोनल्ड्स ग्लोबली ने कहा कि तुम्हें पिज्जा बिल्कुल ऐसा बनाना है, चीज पिज्जा. लेकिन आप तो अपनी फ्रेंचाइजी में जाके वहां का आटा ले रहे हो, वहां का वो कर रहे हो. वो पिज्जा ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ मैकडोनल्ड्स बना दे. That little difference is called tracking error. So your objective was to become nifty, but you were not able to match it because there was a cost. जब निफ्टी है, निफ्टी तो एक थियोरेटिकल इंडेक्स है, लेकिन आपको तो वो स्टॉक्स रोज लेने हैं, बेचने हैं, रीबैलेंस है, मार्केट डायनामिक्स है. That difference is called tracking error. Okay. It's the difference between meeting the benchmark and what is actually delivered. It's SEBI caps it at 2% in equity funds. आमतौर से उससे बहुत कम होता है, but it reduces the return on your ETF a little bit. Okay. Can you elaborate a little bit more on tracking error for our audience? कि मतलब वो calculate कैसे किया जाता है? Is it कि जो हम stocks बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसका price difference? It's the difference of tracking. There are multiple words here, but essentially what you're trying to track is the difference between the price of the theoretical index and the actual return.
ओके and how much that moves up and down. ओके, तो मेरा जो रिटर्न है वर्सेस द इंडेक्स वो कितना हाँ, ऊपर नीचे है? इसको ट्रैकिंग डिफरेंस कहते हैं। और वो कितना वॉलेटाइल, लाइक रोज आपका डिफरेंस होता है या एक ही दिन होता है, दैट इज ट्रैकिंग। एंड दैट इज कैप्ड एट 2% इज व्हाट यू आर सेइंग, 2% से ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। वो हो ही नहीं सकता। एंड एक्चुअली इन मोस्ट फंड्स उससे बहुत कम होता है। ओके ओके, एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली वो डाउनवर्ड ही होगा, करेक्ट, ऑफ इंडेक्स कोर्स। के ऊपर तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली। हाँ। Okay. All right. Okay. Okay. So just one last question related to ETFs. Okay. I think हम जब इन्वेस्ट करते हैं, वी आर इन्वेस्टिंग, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है कि हम बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, Yeah. रिटायरमेंट के लिए। एंड आई थिंक लास्ट एपिसोड में वी हैड अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन अराउंड गोल्स। तो क्या ईटीएफ्स मेरे फाइनेंशियल गोल्स को भी अचीव करने में मदद कर सकते हैं? बिकॉज जनरली फाइनेंशियल गोल्स हमारे कोर पोर्टफोलियो फंड से अचीव किए जाते हैं, राइट? And my satellite portfolio is more to just better my return. So do you think एक ETF मेरे financial goals को achieve करने में मदद कर सकता है? To an extent, yes. अगर आप core portfolio और core ETFs use करें, then you can link your ETFs to those goals. So in that sense, core ETFs are not very different. In fact, ETF investing in part is not very different from regular mutual fund investing. And if you were using a mid cap or small cap fund to meet your kids' goals, you can also use an ETF. Thematic ETFs, I think, are more tactical in nature rather than goal based. So logically एक thematic ETF आप अपने financial goal को achieve करने के लिए use नहीं करोगे? They are more return generation products. वो return generation, yes. लेकिन मान लीजिए आपको 10 साल बाद के लिए आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बचा रहे हैं, maybe you're putting your money in a small cap fund, वो शायद आप small cap ETF Yes. से place करें। And they're great. We spoke about index linked. We spoke about thematic. There are great factor-based ETFs, for instance. For instance, like I said, ये top 500 में से if you pick quality momentum, like quality momentum ETF, these are more core ETF ideas. Okay. So factor-based ideas, quality ideas, these kind of things are more broad-based things, are meant to be more goal-based. Okay, cool. Okay, so just last thing, Radhika, just summarize this conversation for my audience. What would you like to tell them about ETFs, about investing in general, and how should they look at ETF and general mutual fund investing to manage their portfolio? Just a summary of everything we've discussed. So we've talked about investing in a core satellite concept. We've always talked about that. हमने उसकी काफी चर्चा की है. We've said core should be simple. We've said satellite, you can be more experimental. We've said कि एक्टिव फंड होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव बेंचमार्क को बीट करना होता है, पैसिव फंड्स होते हैं जिनका मीट करना होता है। और पैसिव फंड में या तो आप इंडेक्स फंड कर सकते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, या ईटीएफ कर सकते हैं। एंड ईटीएफ इज बेसिकली एन इंडेक्स फंड जो शेयर की तरह बिहेव करता है। यू कैन बाय इट एंड सेल इट एट एनी टाइम इन द डे। वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईटीएफ्स, कोर ईटीएफ्स जैसे मार्केट कैप बेस्ड, फैक्टर बेस्ड, विच आर वेरी गुड फॉर द कोर एलोकेशन, and very interesting thematic ETFs that capture trends that can be used to place satellite ideas and take advantage of sharp market movement. So that is your investing palette. Okay, wonderful. Dal chawal, dessert and chutney. Okay. Cool. Thank you so much, Radhika. Thank you so much for your time. I think it was a wonderful conversation. Very crisp, but I think very, very knowledgeable. I'm sure, at least इस episode के बाद हमारे viewers को ETF के बारे में सब कुछ पता चल ही गया होगा. So thank you so much for your time. I know, you are very tightly packed today in terms of your schedule, but thank you so much for giving us your time. Thank you. Thank you. Wow, that was such a wonderful conversation with Miss Radhika. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. तो आज की जो हमारी एपिसोड की थीम थी, दैट वाज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और ईटीएफ्स. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस राधिका से पूछा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ईटीएफ्स होते क्या हैं. सो मिस राधिका सेज कि अगर हम कोई भी एक एक्टिवली मैनेज फंड को देखें, उसका पर्पस यही होता है टू बीट द अंडरलाइंग बेंचमार्क इंडेक्स. लेकिन अगर हम एक इंडेक्स फंड या ईटीएफ की बात करें, उनका पर्पस होता है टू मीट द बेंचमार्क इंडेक्स. तो एक जो ETF होता है, दैट्स बेसिकली ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है और इसमें आप रियल टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो थिंक ऑफ एन ETF लाइक अ म्यूचुअल फंड विच इज़ बिहेविंग लाइक अ स्टॉक. फिर हमने मिस राधिका से पूछा कि ETFs का स्कोप क्या है इंडिया में. सो मिस राधिका सेज कि आइडियली
ETFs देखा जाए तो बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट हैं और ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बनाए गए हैं जो स्टॉक मार्केट के रिटर्न को मैच करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट जितना रिटर्न पाना चाहते हैं। इसकी जो डिमांड है वो स्पेशली ऐसे इन्वेस्टर से आ रही है जो डीमैट अकाउंट्स खोल रहे हैं या जिनके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट्स हैं। ETFs जो हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। ऐसे ETFs भी हैं जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए हैं और ऐसे ETFs भी हैं जिनमें इवॉल्व्ड इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने मिस राधिका के साथ डिस्कस किया कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ETFs कैसे मैनेज किए जा सकते हैं और बेसिकली हाउ कैन ETFs बी अ पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। सो मिस राधिका सेज कि ऐसे ब्रॉड बेस्ड ETFs होते हैं जो एक इन्वेस्टर के कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। We also have a lot of thematic ETFs जो एक इन्वेस्टर के सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं to take tactical bets. So she says thematic ETF आपके थीमेटिक फंड या सेक्टरल फंड को जो है रिप्लेस कर सकता है। फिर हमने मिस राधिका से पूछा कि हम एक थीमेटिक ETF को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मिस राधिका सेज कि एक थीमेटिक ETF बेसिकली एक सेक्टर या एक थीम को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक कंजम्पशन ETF हुआ तो वो कंजम्पशन थीम को फॉलो करेगा। सो शी सेज कि अगर आपको एक थीमेटिक ETF सेलेक्ट करना है तो आप एक ब्रॉड बेस्ड ETF सेलेक्ट करिए जो अभी टॉप ऑफ द साइकिल नहीं है, विच मीन्स वो अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ब्रॉड बेस्ड है एंड दैट कुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर सैटेलाइट पोर्टफोलियो। फिर हमने मिस राधिका से पूछा कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में क्या वो थीमेटिक ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो मिस राधिका सेज कि आइडियली अगर आप एक फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपको दाल चावल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, लाइक योर फ्लेक्सी कैप फंड्स एंड लार्ज कैप फंड्स एंड सो ऑन। आइडियली थीमेटिक ETFs जो हैं वो इवॉल्व्ड इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी एक थीमेटिक ETF में इन्वेस्ट करना है एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर तो आइडियली ब्रॉड बेस्ड थीमेटिक ETFs देखिए एंड एट द सेम टाइम एक बहुत छोटा सा एलोकेशन जो है इन फंड्स में करिए। फिर हमने मिस राधिका से पूछा कि क्या हम एक ETF में SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिस राधिका सेज कि टेक्निकली स्पीकिंग ETFs आर नॉट बिल्ट फॉर SIPs क्योंकि इनमें आप रियल टाइम बेट्स ले रहे हैं, टैक्टिकल बेट्स ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स यू कैन डू एन SIP इन एन ETF एंड यू कैन एंजॉय सिमिलर बेनिफिट्स दैट यू वुड बाय डूइंग एन SIP इन अ म्यूचुअल फंड। फिर हमने मिस राधिका से पूछा कि क्या हम ETFs के थ्रू फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो मिस राधिका सेज कि आप कोर ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। बेसिकली जो बहुत ब्रॉड बेस्ड ETFs होते हैं that could be used to achieve your financial goals. Basically जो core portfolio होता है वो आपका simple portfolio होता है which is more for long term, जो आपके financial goals को achieve करने में मदद करता है। जो आपका satellite portfolio होता है that's more experimental, जो आपके returns को better करने की कोशिश करता है। So that was about it in this particular episode. I do hope all of you had an amazing learning experience. Thank you so much for watching. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds at Grow. Thank you so much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.